Hello student, welcome to history class. As we have already started in class 12 history, okay, and we have already started chapter first, that is the Harappan civilization, better known as the Indus Valley civilization. So as like today we are going to discuss about the tracking of social differences that whether they are that prevalent in Harappan culture or not. Okay, so to understand the social and economic differences among the people of this particular culture, like archaeologists have taken, okay, two strategies to understand this differences. Okay, one is burial. Number one is burial. Okay, burial, and the second one is looking for artifacts. Looking for artifacts. Okay, so now we are going to discuss about the burials. First we are going to discuss about burials. Number one, as you know what is burial. Okay, so burial, as you know, to like dispose the dead body. Okay, there are two type like we can dispose the dead body after that. One is by burning it and one is by like buried it. Okay, so most of the sites of the Harappan sites, the archaeologists have found the like they have found the dead body in a burial manner. Okay, so like as you everyone, like as you know, okay, the pyramid in Egypt. Okay, so the pyramid look like this. Okay, so pyramid. Okay, so most of the pyramids of the Egypt, they were contemporary of Harappan settlement. Okay, so is pyramid, what they used to do is, in most of the pyramid in Egypt, they used to bury down the dead body, and they used to put enormous quantity or amount of jewelry, precious metals, and different kinds of things in it. And this burials or this pits or this graveyard belongs to some kind of royal families, rich people, or the elite family, right? So like that only in Harappan settlement also, the archaeologists try to understand these differences by taking the strategy of finding burials. Okay, so Harappan settlement में भी like Harappan site से भी archaeologists ने क्या किया कि उन लोगों ने क्या किया, पिट वगैरह को क्या किया, एक्सकावेट किया. ओके, तो क्या उन लोगों को फर्स्ट क्या मिला बोलने से, फर्स्ट व्हाट दे हैव found is, so there is two type of like in Harappan sites. Okay, one is एक पिट था जहाँ पे एक पिट के सामने क्या था, हॉलो एरिया था. वहाँ पे क्या था, द हड़प्पन हैव ब्रिक को क्या किया था, लाइन अप करके जो हॉलो एरिया था सबको क्या किया था, दे हैव cover that hollow area with putting the bricks in a line. At the same time, from the same side, they have found the burial of other person. Okay, but there was not a single brick. Okay, so from this evidences also there is some kind of differences, but we don't know. So as you can see this, okay, there is a differences, but could this could this variation be an indication of social differences? No, we cannot say that, and we are not sure about it. Okay, so next example. Okay, so next example is burial का. Okay, burial का. So ऐसे ही हड़प्पन सेटलमेंट्स में ग्रेवयार्ड से, ओके, ग्रेवयार्ड से क्या मिला था, ग्रेवयार्ड से क्या मिला था बोलने से, एक लाइक ग्रेवयार्ड से क्या मिला था, बहुत ज्यादा यहाँ पे ज्वेलरीज वगैरह डाल दिया था. एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्तन वगैरह, पॉटरी वगैरह, यूटेंसिल्स, वेसल्स, टूल्स वगैरह डाल दिया था. एट द सेम टाइम सम ग्रेवयार्ड्स वर एम्प्टी. ठीक है, एम्प्टी था. सो वहां से भी क्या हो रहा है कि वहां से भी जैसे इजिप्ट के लोग जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, उन लोगों का ग्रेवयार्ड वगैरह कैसा होता था, देयर ग्रेवयार्ड वाज फुल फिल्ड विथ
ऑर्नामेंट ज्वेलरीज, राइट। सो ऐसे ही आर्कियोलॉजिस्ट ने कंपैरिजन करने की भी कोशिश की कि वो ये आदमी जो जिसका ग्रेवयार्ड पूरा लाइक ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स वगैरह से भरा है और लाइक पॉट वगैरह से भरा है, क्या वो रिच पर्सन था, कि whether he or she belongs to a richer family, okay, royal family, okay। at the same time other graveyard there is nothing in it, okay, कुछ भी नहीं था, तो वहां से okay, whether this person belongs to a poor family, यहाँ से भी कुछ क्लियर पिक्चर तो नहीं आ रहा है कि नहीं। सो वी कैन नॉट से because because the archaeologists have not found an exact answer, okay। next ऐसे ही हड़प्पन सेटलमेंट से लाइक ड्यूरिंग 1980s में क्या था, हड़प्पन सेटलमेंट के हड़प्पा से, हड़प्पा इज द नेम ऑफ अ प्लेस, लाइक प्लेस, राइट। सो इट इज इन मोंटेगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, पाकिस्तान, है कि नहीं। सो हड़प्पा से क्या मिला, एक आदमी का ग्रेवयार्ड से सिमेट्री से, ओके, सिमेट्री से क्या मिला, स्कल मिला, और उस स्कल के सामने क्या मिला, बहुत ज्यादा स्पेशली 3 प्रीशियस आइटम मिला, ओके। एक मिला उसको यहाँ से मिला सेल, मिला सेल का रिंग मिला, ठीक है। अदर वन इज जैस्पर मिला, जैस्पर मीन्स इट इज अ प्रीशियस स्टोन, बहुत ज्यादा प्रीशियस होता है, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव भी होता है और बहुत ज्यादा रेयर भी होता है। एट द सेम टाइम यहाँ से इस स्कल के सामने से क्या मिला, हंड्रेड्स ऑफ क्या मिला, माइक्रो बीट्स, छोटा छोटा बीट मिला। सो यहाँ मिलना इतना ज्यादा मिला पर क्या है, स्टिल we can't say that there exists any kind of social or economic differences in the Harappan culture, okay। Okay, now I hope you have understood, okay, the burial system, what is how the like archaeologists they have tried to explain us about the social and economic differences of the Harappan settlement by using one strategy, that is burial. Now we will move to the next strategy, that is looking for artifacts, okay। Okay, so next strategy is this, okay। So archaeologist ने क्या किया, इस strategy को भी 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। एक सेक्शन का नाम था यूटिलिटेरियन, and the other one is luxurious, okay। यूटिलिटेरियन मीन्स जो हम डेली यूज करते हैं, जो जिसका लाइक सप्लाई जिसका सप्लाई बहुत ज़्यादा मात्रा में है और जो जहाँ भी मिल सकता है, लाइक डेली यूज़ का सामान जैसे बर्तन वगैरह है कि नहीं। सो वो जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, राइट और रॉन्ग, ओके। उसको क्या किया, लाइक पॉट्स, ओके, कॉर्न्स, एज यू नो व्हाट इज कॉर्न, ठीक है, इट्स लाइक अ ग्राइंडिंग, ट्रेडिशनल ग्राइंडिंग मशीन, ओके। हम इसको नेपाली में क्या बोलते हैं, सिलौटे लोरो बोलते हैं, ठीक है। सो ऐसा वाला सामान मिला, और फिर उन लोगों ने क्या मिला, उन लोगों को नीडल्स मिला, उन लोगों को क्या मिला, ब्रॉडी स्क्रबर मिला, वो भी कितना, वो मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सेटलमेंट से मिला, वो भी कितना अबंडेंट मात्रा में मिला, ठीक है। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने उस आर्टिफैक्ट्स को क्या किया, इस कैटेगरी में डाल दिया। कौन सा कैटेगरी, यूटिलिटेरियन लाइक यूटिलिटेरियन आर्टिफैक्ट्स में लाइक कैटेगरी में डाल दिया, ओके। सो लग्जूरियस में क्या आता है, सो लग्जूरियस में आर्कियोलॉजी ने जो सामान बहुत ज़्यादा रेयर है, जो सभी सेटलमेंट से नहीं मिले, उसको किस में डाल दिया, लग्जूरियस कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। सो लाइक आर्कियोलॉजिस्ट को 1-2 साइड से क्या मिला, एक फेंस, लाइक दिस इज ओके, फेंस पॉट मिला, एक फेंस पॉट, ओके, एज यू नो पॉट, व्हाट इज पॉट, ओके, दिस इज अ पॉट, ओके, ये पॉट मिला, फेंस, ओके। इसके बाहर फेंस मीन्स इट इज लाइक अ मटेरियल, ओके, वो बहुत ज़्यादा रेयर मात्रा में मिलता है, ज़्यादा उसका सप्लाई नहीं होता है। सो वो क्या करता है, इट इज लाइक अ सिलिकॉन, इसको क्या कहता है, शाइनिंग देने के लिए करता है, बस उसके ऊपर
फेंस का क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, नीचे से फायर देते हैं, ठीक है। सो ऐसे इसका क्या आता है, टेक्सचर आता है, और ये पॉट क्या होता है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग और इट लुक्स वेरी यूनिक, ओके। सो ऑब्वियसली उसका प्राइस क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा ना। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, इसको एज अ लग्जूरियस आर्टिफैक्ट्स के अंडर में डाल दिया, ठीक है। पर एक प्रॉब्लम आर्कियोलॉजिस्ट को आया, ठीक है। वो प्रॉब्लम क्या था बोलने से, जब आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकावेट कर रहे थे तो आर्कियोलॉजिस्ट को एक सामान, उसको बोलते हैं स्पिंडल वोल्स, स्पिंडल वोल्स बोलते हैं। वो क्या है, इट इज लाइक अ रॉड, ओके, इट इज लाइक अ rod, okay, which is used in a which is used in a daily life, okay, उसे daily life में use करते हैं। तो बट जो भी वो स्पिंडल वॉल्स में बनाने के लिए मटेरियल लगा था वो था फेंस था, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बोला, फेंस क्या है, एक रेयर मटेरियल है जो साइनिंग के लिए काम करता है, ओके, इट इज यूज एज अ ग्लेज, ओके। सो पर ये क्या मिला, ये स्पिंडल वॉल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिला, तो ये एक साइड से क्या एक्सपेंसिव भी है, एट द सेम टाइम इसको बहुत ज़्यादा साइड से और बहुत अबंडेंट मात्रा में उसका मिला था। सो इन दिस लाइक पॉइंट आर्कियोलॉजिस्ट क्या हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे कि इसको लग्जरियस में डाले या यूटिलिटेरियन में डाले, ठीक है, डेली यूज में डाले या लग्जरियस में। सो इससे भी क्वेश्चन रेज होता है कि the evidences which was collected by the archaeologists is still not so clear, okay. Now we'll go to the next one, okay. So ऐसे ही okay, now we'll go to the next one, okay. So जो भी सामान लग्जूरियस आइटम, जो भी लग्जूरियस आइटम हड़प्पन साइट से मिला था वो क्या था, वो जो भी आइटम मिला था वो सभी आइटम सिर्फ लार्ज सेटलमेंट से मिला था, ठीक है। लार्ज सेटलमेंट, दैट इज एज यू टोल्ड यू, द लार्ज सेटलमेंट इज द मोहेंजोदड़ो एंड द हड़प्पा, ठीक है। जो भी लग्जूरियस आर्टिफैक्ट्स व एविडेंसेस मिला था वो सभी लार्ज सेटलमेंट से मिला था, वो है मोहेंजोदड़ो एंड हड़प्पा। एट द सेम टाइम स्मॉल सेटलमेंट लाइक कालीबगान, ठीक है, धोलावीरा, वहां से कुछ भी नहीं मिला था, चानुदारो से बहुत वहां से ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं मिला था ऐसा लग्जरियस आइटम, ओके। एट द सेम टाइम as we consider gold, okay, as we consider gold as a very precious metal, right, it is still very precious, okay, and इसका अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रेयर है एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। बट हड़प्पन सेटलमेंट में भी आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला, ये बहुत ज़्यादा कम मात्रा में मिला, बट कैसे कंडीशन में मिला, इट इज़ इट वॉज फाउंड इन अ वेरी हिडन मैनर, उसको क्या बोलते हैं, होड्स बोलते हैं, ठीक है। होड्स मीन्स जैसे हमारे घर में भी हम कुछ ही सामान को छिपाने के लिए क्या कहते हैं, किसी बर्तन में डालते हैं, उसको क्या कहते हैं, किसी कोने में जाके रख देते ना। तो ऐसे ही हड़प्पन सेटलमेंट से भी गोल्ड को कैसे मिला, इन अ होड हिडन मैनर, होड मीन्स हिडन, ठीक है। उसको भी आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकावेट करने के टाइम पे, सिर्फ एक्सकावेट जब डिगिंग प्रोसेस कर रहे थे आर्कियोलॉजिस्ट, उस टाइम मे बी ये लाइक ग्राउंड वगैरह से मिला होगा। सो उस टाइम पे भी गोल्ड इज सो प्रीशियस। सो बट from all these evidences and from all these things, still we are not in an exact position to say that there is a social differences that was prevalent in Harappan settlement. At the same time, we cannot say there prevail some kind of differences, okay. So we are in a 50-50, okay. Still the archaeologists are in a discussion or are in a search that whether there is any kind of social differences or not. So today I'm going to jot down my class here only. So see you in next class, okay. Thank you.